Welcome to Soapbox Talks, my friends. I have a distinguished speaker today, Shri Hiten Bhai Bhuta from USA, and I would like to just say good morning to all the friends who are joining from the other side of hemisphere, uh, USA and all. So good morning to all of who have joined from USA, and good evening to all the friends who are joined from India. And welcome to all the CGS people and people from MCF Club, Happiness Foundation, and a lot of friends have joined. We are almost 55 people today, right now. And yes, I mean, we are also live. People are watching from different places. So we are entering a phase of technology trends which is rapidly changing, and the most important thing is people are unaware of the changes also what is happening around them, and there are sweeping changes which takes away your business also many times. So it is very important for all of us to understand from Shri Hiten Bhai Bhuta to understand what things will change their businesses, what will be the challenges which will come, and how they will face the challenges, and what they should do to stay alive in business and be successful and have survival and growth also. So unless you know and unless you have vision what is going to happen in future, uh, we tend to lose a lot of things. So friends, we have technology which is changing at a very rapid scale, like robots, cobots. Robots have gone. Now we have got bots now. Am I right? So like Alexa, Siri, they are called simple bots. But then we have got web crawlers and web scrapers and so many things which are there. So, without taking much further time of all the people around us today and who are participating, I will invite our co-host Parag Bhai to invite our distinguished speaker Hiten Bhai and invite him to start the session today. Thank you. Thank you very much, sir. Good evening, friends, and namaste. I'm Parag Jitendra Mehta, your host for today. We welcome you all to Soapbox Talks 16th epic episode, which is a brainchild of Bharat Bhai Desai. Bharat Bhai Desai, CA Bharat Desai, is not only a financial advisor, but also a business coach, trainer, and a social worker. We all call him a Bharat Guru. And today, Soapbox Talks and all our team members are feeling proud and honored to welcome you all to introduce today's guest speaker, Sri Hiten Bhai Bhuta, who is an extraordinary international business leader, hospitality technology expert, and proven researcher with long track record of outstanding skills. Friends, he is also an author, technology entrepreneur, and community leader. In 1995, Sri Hiten Bhai Bhuta founded CGS Infotech, a company currently serving 5,000 plus clients in 40 plus countries. CGS Infotech has partnership with tech companies such as Google, IBM, GoDaddy, to name a few. In September 2014, Hiten Bhai received a certificate of appreciation from Consulate General of United States for the contribution he has made to India-US trade and technology transfer. Hiten Bhai has served as visiting faculty member at IIT Mumbai, Thakur Management Institution, and several other institutions in India. After completing his BE in electronics from KJ Somaiya College of Engineering in 92, Hiten Bhai participated in postgraduate program at IIT Bombay, Shailesh Mehta SOM, IIM Ahmedabad, and leadership program by faculty from Harvard Business School. Welcome Hiten Bhai. Please guide us about upcoming technologies and how to prepare ourselves for upcoming faster changes in technology world. Welcome sir, the floor is yours. आप सबको मिलके बड़ी खुशी हुई। मेरे लिए बड़े आनंद की और गौरव की बात है कि आप सबसे जूम के माध्यम से कुछ बातें शेयर करनी है। और
श्री भरत भाई देसाई, इन्होंने एक अच्छा आइडिया हर वीक, हर गुरुवार को ये करते हैं कि अच्छे स्पीकर्स को, उनकी दृष्टि से जो अच्छे स्पीकर्स हैं और उनकी कमिटी की दृष्टि से अच्छे स्पीकर्स हैं, उनको यही टाइम पे सबको शेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। भरत भाई और पराग भाई, उन दोनों का मैं आभारी हूँ। आज का जो सेशन है ये ऐसे भी कह सकते हैं कि आप सबको जीवन में ज्यादा सफलता कैसे मिले, शांति कैसे मिले, आपको और आपके परिवार को सफलता और शांति कैसे मिले, उसके बारे में। क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई मायने नहीं रखती, टेक्नोलॉजी अपने आप में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्नोलॉजी आपकी सेवा में लग जाए तो इंपॉर्टेंट है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो इस भाव से करने वाले हैं, इस ऑब्जेक्टिव से करने वाले हैं कि टेक्नोलॉजी के जो भविष्य में ट्रेंड्स होंगे उससे आप ज्यादा कैसे सफलता पाए और आपका परिवार कैसे सफलता पाए और आपको कैसे आनंद और शांति मिले। भविष्य जब अनजान है, अनप्रेडिक्टेबल है, अननोन है, तो सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। जब भविष्य का हमें एकदम स्पष्ट क्लियर हो गया, पिक्चर क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया, तो हम सफलता पा सकते हैं और उस भविष्य के लिए तैयार भी हो सकते हैं। अगर भविष्य में कुछ चैलेंजेस भी आने वाली है, हमको मालूम है कि ये चैलेंज आएगी, तो हम अपने आप को तैयार कर लेंगे, अपने परिवार को तैयार कर लेंगे, अपने बिजनेस को तैयार कर लेंगे कि ये चैलेंज को हम फेस कर सकें। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि भविष्य अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को कुछ मालूम नहीं फ्यूचर में क्या होगा, सब अननोन है, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा हमारे अनुभव में भी आता है। लेकिन कई बार हम अगर ध्यान से देखेंगे तो भविष्य काफी हद तक निश्चित है, फिक्स्ड है, प्रेडिक्टेबल है, नोन है। जैसे ये ऋतुओं के चक्र चलते हैं, वैसे कुछ बातें भविष्य की आप पास्ट को देख के डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में बात करने वाले हैं और मैं हो सकेगा उतना, ये पूरा हमारा करीबन आधे घंटे का सेशन होगा, तो टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में जो बात करेंगे वो नॉन टेक्निकल भाषा में बात करेंगे, सबको समझ में आएगा, ऐसी भाषा में बात करेंगे। और टेक्नोलॉजी से आप कैसे फायदा ले सकते हैं, वो चेंजेस आने वाले हैं, चेंजेस आने वाले, उससे कोई हमें अभिभूत हो गए, इंप्रेस हो गए, उससे अले ओ बाप रे इतने चेंजेस आ रहे हैं, ये मनोदशा रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये चेंजेस आने वाले, आपको क्या फायदा मिलेगा, इस पे हम विचार करेंगे। इस पे भी मैं बात करूंगा कि आप कैसे उसका फायदा ले सकते हैं और कौन सी चैलेंजेस आ सकते हैं और उससे आप कैसे सामना कर सकते हैं, ये भी बात करेंगे। अभी ये पूरा जो टेक्नोलॉजी के चेंजेस और ट्रेंड्स हैं, उसके लिए आप एक कल्पना करिए, एक मॉडल दिमाग में सोचिए कि जैसे एक 8 फ्लोर का बिल्डिंग है, 8 फ्लोर का बिल्डिंग, 8 लेवल है, वो चेंजेस के 8 लेवल है। तो हम सब लेवल पे बात करेंगे। उसका मैंने नाम रखा है, वो 8 लेवल जो है ना, D-Tech एंड IGV। पहले 5 लेवल को नाम दिया D-Tech और टॉप के 3 लेवल है उनको नाम दिया IGV, शॉर्ट फॉर्म। क्या मतलब है ये 8 लेवल का, क्या मतलब है? पहला जो बेसिक ग्राउंड फ्लोर है वो है ड्राइविंग फोर्स। टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका मूल कारण क्या है? पेड़ के जो रूट्स होते हैं ना, ये मूल कारण क्या है? इसको हम बोलेंगे डी फॉर ड्राइविंग फोर्स।
ये मूल कारण 3 है, उसके बारे में बात करेंगे। वो जो मूल कारण होते हैं ना, वो एकदम सुनामी जैसे हैं, उसमें चेंजेस आता है ना तो पूरा सुनामी आ जाता है। फर्स्ट फ्लोर जो है कि वो ड्राइविंग फोर्स के आधार पर कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड लेवल है कि वो टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारे जीवन के लिए, बिजनेस के लिए कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसको बोलते हैं एप्लीकेशंस एंड सॉल्यूशंस। और फोर्थ लेवल है वो एप्लीकेशन और सॉल्यूशंस के आधार पर वो प्रोवाइड करने के लिए कुछ कंपनियां खड़ी हो जाएंगी। पहला है ड्राइविंग फोर्स, उसके आधार पर टेक्नोलॉजियां बनेगी, टेक्नोलॉजी के आधार पर सॉल्यूशंस बनेंगे। फोर्थ सॉल्यूशन के आधार पर वो प्रोवाइड करने के लिए, वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ कंपनियां खड़ी हो जाएगी। वो आप भी बना सकते, कोई भी बना सकते, एकदम नई कंपनियां सामने आ जाएंगी। जो अभी अननोन है वो कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। वो कंपनियों के बारे में, वो कंपनियां जो ये सॉल्यूशन समझेगी और बनाएगी, वो दुनिया की बड़ी कंपनी बन जाएगी। जैसे आज से 20-25 साल पहले जेफ बेजोस करके एक आदमी अमेरिका में, उन्होंने देखा कि लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, कंपनी बनाई अमेज़न। आज अमेज़न का वैल्यू 1.65 ट्रिलियन है, एप्पल का वैल्यू 2 ट्रिलियन है। भारत की सभी बैंक, सभी कंपनियों को मिला दें तो उसका मार्केट कैप है 2.13 ट्रिलियन। मतलब एक एप्पल के सामने पूरी भारत की सब कंपनी आ जाएंगी उसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो ऐसी कंपनी $ट्रिलियन की कंपनी खड़ी हो जाएगी ये सॉल्यूशन के आधार पे। ये कंपनी ये जब कंपनी खड़ी हो जाएगी, टूल्स बनाएगी, तो सोसाइटी में ट्रेंड चालू होगी, नए ट्रेंड चालू होंगे। तो उसको मैंने 3 नाम दिए। तो ये 5 लेवल पे हमने देख लिया, ड्राइविंग फोर्स, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन और सॉल्यूशन, कंपनीज और ट्रेंड। जैसे ये 5 पे पहले बात करेंगे। जैसे अभी आप देखेंगे हम लोग ये जूम पे बात कर रहे हैं। ये आप जहां पे भी आप कुछ ट्रेंड देखते हैं ना, तो उसके नीचे ये 4 लेवल आप देख पाएंगे। तो अभी ट्रेंड क्या है लोगों का, जूम पे बात करते हैं। यूट्यूब पे सब यूट्यूबर बन गए, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए। सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब चैनल चालू करते हैं, इंस्टाग्राम चालू करते हैं, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर आ जाते हैं। एक जमाना था कि 10 लाख लोग आपको फॉलो करें, आपका बात सुने, वो करने में जीवन लग जाता था। अभी आज बच्चे 6 महीने में 10 लाख लोग उनको फॉलो करते, करोड़ों लोग फॉलो करते। तो ये ट्रेंड हो गया, सब अपना यूट्यूब चैनल चालू करते हैं, सब जूम करते हैं, ये ट्रेंड हो गया। ये ट्रेंड के नीचे कंपनी कौन सी है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाए, वो जूम है, स्काइप है, यूट्यूब है, ये कंपनी है। तो पहला हो गया ट्रेंड, सोशल मीडिया शेयरिंग, कंपनी यूट्यूब, जूम, ये सब कंपनी है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो शेयरिंग। सॉल्यूशन कौन सा यूज कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो शेयरिंग। थर्ड लेवल में टेक्नोलॉजी कौन सी है, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन। और ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, रूट क्या है। ये सब यूट्यूब और जूम और ये सब रूट नहीं, रूट क्या है, 4G। रूट है 4G, इंटरनेट स्पीड। 150-200 रुपये में आप फ्री में एंजॉय करो, इंटरनेट में जितना करना है उतना करो। तो ये जो जब मैं आपको ये याद दिलाऊं, ये जो बेसिक ड्राइविंग फोर्स में जब चेंज आता है ना, वो सुनामी है, सब चेंज हो जाएगा। वो चेंज आता है तो सब चेंज हो जाते हैं। तो आप हर एक जगह पे, लोग व्हाट्सएप पे ज्यादा शेयरिंग करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं।
तो ट्रेंड क्या हो गया, सब लोग व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं। उसके लिए कंपनी कौन सी है, व्हाट्सएप, फेसबुक। उसका ये सॉल्यूशन कौन सा यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन कौन सा यूज कर रहे हैं कि कनेक्टिंग विद पीपल, ग्रुप्स। टेक्नोलॉजी कौन सी है, ऑडियो वीडियो शेयरिंग। और ट्रेंड कौन सा, अपना ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, अगेन 4G। 3 मेजर ड्राइविंग फोर्स। तो अभी मैं जो बात कहूंगा ना, उससे आपको आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल पूरा आप मॉडल समझ सकते हैं कि किस तरह से ग्रोथ होगा। तो 3 ड्राइविंग फोर्स है, मेजर ड्राइविंग फोर्स। एक है बैंडविड्थ, इंटरनेट की स्पीड। जो स्पीड से इंटरनेट में कनेक्ट होते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। तो अभी टेक्नोलॉजी की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, जब कोई बड़ा चेंज आता है उसको बोलते हैं जनरेशन। 1G से 2G, 2G से 3G, 3G से 4G, अभी 4G से 5G आएगा। बहुत बड़ा चेंज आएगा। 2000 यहाँ पे अमेरिका में लॉन्च हो गया, 5G लॉन्च होगा इंडिया में 2022 में, रिलायंस लॉन्च करेगी। तो उससे क्या होगा, हमारा जो इंटरनेट स्पीड है वो 10 गुना से 100 गुना तक बढ़ जाएगी। इतना स्पीड में आप इंटरनेट कनेक्ट कर पाएंगे, ऑलमोस्ट सेम भाव में, 150 रुपया में ही प्राइस सेम। 5G से पूरा दुनिया चेंज हो जाएगी, सुनामी। दूसरा है, एक 3 ड्राइविंग फोर्स है। एक है इंटरनेट स्पीड। यूरोप में 6G के ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो 6G, 7G, 8G, जितने जनरेशन फास्ट इंटरनेट स्पीड आएगा वो ड्राइविंग फोर्स है। वो ड्राइविंग फोर्स पे 3 में बोल रहा हूं। एक हो गया इंटरनेट स्पीड, सेकंड है कंप्यूटर का स्पीड। आज का जो कंप्यूटर है, मैंने इंजीनियरिंग स्टडी किया 92 में, तब जो सुपर कंप्यूटर होते थे उस जमाने के, वो आज आपके मोबाइल में जो मेन दिमाग होता है ना मोबाइल का या कंप्यूटर का, उसको सीपीयू बोलते हैं। मोबाइल का दिमाग को एसओसी बोलते हैं, सिस्टम ऑन चिप बोलते हैं। और डेस्कटॉप और लैपटॉप को सीपीयू बोलते हैं। उसमें भी अलग अलग जनरेशन आती है। अभी जो जनरेशन इंटेल का लॉन्च हुआ वो 11th जनरेशन सीपीयू लॉन्च हुआ। सितंबर में 12th जनरेशन लॉन्च, 10th जनरेशन लॉन्च हुआ। सितंबर में 11th जनरेशन लॉन्च होगा। 2021 में 12th जनरेशन लॉन्च होगा, टाइगर लैक नाम। इतना स्पीड होएगा, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आ जाएंगे। और थर्ड ड्राइविंग फोर्स है स्टोरेज टेक्नोलॉजी। डेटा का जो स्टोरेज होता है, अभी हम इतने सारे वीडियो, इतने सारे फोटो अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो सीगेट और वेस्टर्न डिजिटल, ये कंपनियां स्टोरेज टेक्नोलॉजी, आप पूरे के पूरे बॉलीवुड में जितने पिक्चर बने हैं ना, वो सब आप अपने मोबाइल में स्टोर कर पाएंगे। इतना हेवी डेटा एक छोटी सी जगह में स्टोर हो जाएगा। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ ये स्टोरेज टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत सारा डेटा एक साथ स्टोर हो गया तो उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसके नए टूल्स बना सकते हैं कि वो डेटा का उपयोग करके क्या करें। तो ये 3 टेक्नोलॉजी ड्राइवर हैं। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेसमैन हैं, तो आपको एक बता दूं, आप मोबाइल रिपेयरिंग करो, मोबाइल ट्रेडिंग करो, सेकेंड हैंड मोबाइल का काम करो, वो चलेगा हमेशा के आने वाले 10, 15, 20 साल चलेगा। क्योंकि बहुत सारे मोबाइल में चेंजेस आएंगे, फास्ट आएंगे। तो बैंडविड्थ, रिलायंस जियो के वो बन जाओ, क्या बोलते हैं, पार्टनर बन जाइए, वो कमीशन देंगे, वो भी चलेगा। क्योंकि वो बैंडविड्थ लोग ज्यादा यूज करते ही जाएंगे। तो ये ड्राइविंग फोर्स हो गया। तो आप ये ड्राइविंग फोर्स पे ध्यान दीजिए, ये सुनामी है। जब नेक्स्ट जनरेशन चालू होगा ना, 5G चालू होगा ना, तब चेंज हो जाएगा। अभी वो ड्राइविंग फोर्स के आधार पर कुछ, अभी ड्राइविंग फोर्स जो है ना एकदम क्लियर है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये होने वाला ही है, प्रेडिक्टेबल है, फिक्स्ड है। 5G आएगा ही,
11th जनरेशन कंप्यूटर आएगा ही, ये वेस्टर्न डिजिटल का 6th जनरेशन हार्ड डिस्क आएगा ही, सब फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये ट्रेंड जो है उसको आपको ज्योतिष को दिखाने की जरूरत नहीं है कि 5G आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही, 6G भी आएगा ही, ये ट्रेंड फिक्स्ड हो गया। अभी उसके आधार पर ये हाई स्पीड इंटरनेट, हाई स्पीड कंप्यूटिंग, हाई स्टोरेज के आधार पर कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी दुनिया के सामने, तो बहुत आएंगी, लेकिन मैं 3 पे ही बात करूंगा। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी आदमी बात करता है, अभी हम लोग इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं चीजों के साथ भी, कैमरा भी अपना इंटरनेट, लाइट, पंखा सब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, फ्रिज बीज सब, गाड़ी बीड़ी सब इंटरनेट से, सब स्मार्ट हो जाएंगे। इसको IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट होम, स्मार्ट कार, स्मार्ट टीवी, सब स्मार्ट, स्मार्ट शर्ट, स्मार्ट वॉच, उसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब चीजें इंटरनेट से कनेक्ट होगी तो स्मार्ट होगी। तो ये पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर खुद सोचेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खुद अपने आप को इंप्रूव करेगा, खुद सीखेगा कि मेरी गलती क्या है या ये कैसे अच्छा हो सकता है, खुद ही अपने आप को रीराइट करेगा। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, IoT बोल दिया मैंने। और तीसरा है वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। ये 3 टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अभी चालू है काम, ये भी फिक्स है, ये होने वाला ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी है, मैं 3 पे ही बात करूंगा। तो आप लोग जो, अगर आपके बच्चे हैं अभी ये टेक्नोलॉजी सीखेंगे, IoT सीखेंगे, AI सीखेंगे, गूगल के सब AI प्लेटफॉर्म है वो सीखेंगे, मशीन लर्निंग सीखेंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी सीखेंगे, वर्चुअल रियलिटी सीखेंगे, फेसबुक के ऑकुलस पे कैसे प्रोग्रामिंग करना वो सीखेंगे, कंटेंट कैसे बनाना। अभी भरत भाई यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, कल को वर्चुअल रियलिटी पे कंटेंट कैसे बनाना, ऑगमेंटेड रियलिटी पे कंटेंट कैसे बनाना, वो सीखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये भविष्य होगा, उसमें आप कंटेंट क्रिएट करो, ये भविष्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी टेक्नोलॉजी। अभी सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। ट्रेंड हो गए, ड्राइविंग फोर्स, टेक्नोलॉजी, भी सॉल्यूशन क्या होंगे। IoT को यूज करके ड्राइवरलेस कार, सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं अभी 3 पे बात करूंगा, थोड़ा सा समय है हमारा, तो 3 पे बात करूंगा। तो ड्राइवरलेस कार हो जाएंगे, गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी, ड्राइवर की जरूरत नहीं, क्योंकि गाड़ी इंटरनेट से कनेक्टेड हो गई, गाड़ी में कैमरा आ गया, गाड़ी दूसरे गाड़ी से बात कर सकती है, तो गाड़ी विदाउट ड्राइवर चलेगी। ये एक सोल्यूशन हो गया। आदमी के प्रॉब्लम थे भाई, क्या गाड़ी चलाना बहुत झंझट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो ड्राइवरलेस कार होगी। वो IoT की एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन, कि जो इंटेलिजेंस वाले काम थे, कंसल्टिंग, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, लीगल काम, वो सॉफ्टवेयर करेगा। आज दुनिया का, अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मतलब मेरे को रिटायरमेंट के लिए ये करना चाहिए, मैं कैसे पैसा लगाऊं, 5000 म्यूचुअल फंड की स्कीम है, कहाँ पैसा लगाऊं, क्या करूं, कौन सा शेयर लूं, मेरा प्लानिंग कैसे करूं, उसके लिए जो आज अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो है बेटरमेंट। वो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो खुद आपको सोच के बोलेगा ऐसा ऐसा करो, आदमी की जरूरत नहीं। तो अभी जो भी काम आदमी की इंटेलिजेंस से हो रहे हैं, वो काफी सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक दूसरा मैं आपको एप्लीकेशन बोलता हूँ, कि एक जमाना था जब ट्रांसलेशन के काम होते थे, ट्रांसक्रिप्शन के काम होते थे। अभी क्या होगा, अभी ऐसे सॉफ्टवेयर बन गया है AI का, अभी मैं बोल रहा हूँ ना हिंदी में, लाइव
मेरे ही आवाज में फ्रेंच में भी बात, मेरा वीडियो दिखेगा, जर्मन में भी दिखेगा, चाइनीज में भी दिखेगा, दुनिया की 200 लैंग्वेज में ऑटोमेटिक रियल टाइम लाइव ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और मैं बोलता जाऊंगा और हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, बुक भी पब्लिश हो जाएगी। तो ये एआई के एप्लीकेशंस, ये सॉल्यूशन जो है वो रियल टाइम ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और वीआर एंड एआर, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, उसको कहेंगे होलोग्राफिक फोन आएंगे। होलोग्राफिक सॉल्यूशन मतलब क्या? अभी क्या है, हम लोगों का वीडियो देखते हैं, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, ऐसे महसूस नहीं होता। तो हम लोग देखो अपने शास्त्र में पढ़ते थे कि ये किसी ने बहुत भगवान की पूजा की, पर भगवान प्रकट हुए, हवा में प्रकट हुए, फिर अंतर ध्यान हो गए। वैसे होलोग्राम मतलब क्या? जिससे आप बात कर रहे हैं वो हवा में प्रकट होंगे आपके सामने, 3 डायमेंशन। और जब फोन कंप्लीट हो गया, आपके भाई का फोन आएगा, भाई पूरा हवा में प्रकट होगा, और फिर आप बात खत्म हो जाएगा तो चले जाएंगे। तो ये वर्चुअल रियलिटी में क्या होगा? अभी भी ऐसे एप्लीकेशन है। अब कोई सीनियर सिटीजन हो जाता है, बोलते हैं अभी मैं नहीं जा सकता अमेरिका, कुछ जरूरत नहीं जाने की, आप ये फेसबुक का ऑकुलस का चश्मा ले लो, पहन लो, पूरी दुनिया देख सकते। ब्रेन के अंदर क्या है? मेरे को ब्रेन साइंस में इंटरेस्ट है, तो मेरे को स्टडी करना है कि ब्रेन, जैसे मेडिकल डॉक्टर ब्रेन को खोल के देखते हैं, मेरे को स्टडी करना है, मैं चश्मा पहन लो फेसबुक का, ऑकुलस का। ये वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, उसके कंटेंट क्रिएशन में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, बड़ा फील्ड है। तो हमने ड्राइविंग फोर्स के ऊपर बात की, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। अभी कंपनी के ऊपर, कौन सी कंपनी अभी ऐसा लग रहा है कि ये सब सॉल्यूशन में लीडरशिप प्रोवाइड करेगी? आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आप भी कर सकते हैं। हमारे तो यहाँ पे बहुत सारे कपल लोग हैं, बनिया लोग हैं, हम लोग तो खुद ही एक्सपर्ट हैं, आप भी कर सकते हैं। अभी ड्राइवरलेस कार के लिए वेमियो करके, WAYMO, वेमियो, ये कंपनी है, उसने लाखों ट्रिप्स विदाउट ड्राइवर गाड़ी चला के दिखा दिया। अमेरिका के हर स्टेट में, हर लोकल जगह पे ड्राइवरलेस गाड़ी चलाने के लिए रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशन क्या होंगे, वो सब बन रहे हैं। तो ये कंपनी है ना, ये गूगल ने खरीद ली। ये कंपनी लग रहा है कि वो एप्पल भी बना रहा है, एप्पल कार भी बन रही है ड्राइवरलेस। तो एप्पल और ये लोग जो है इसको बहुत लीडरशिप, खाली ड्राइवरलेस कार नहीं, ड्राइवरलेस ट्रक बन जाएगी। इतना बड़ा पूरा इंडिया में केरला से हिमाचल प्रदेश माल भेजना पड़ता है, वो सब उसमें चलेगा। तो आप कर सकते हैं, आप लेके आइए, गवर्नमेंट को कंसल्ट करिए कि सर ये 5 साल में तो ये होने वाला है, तो नए ट्रैफिक सिग्नल बनाने पड़ेंगे, नए रूल्स बनाने पड़ेंगे। ये ड्राइवरलेस कार आएंगे तो काफी लोगों को सुविधा हो जाएगी, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, सब कायदे से चलेगा, हिसाब से चलेगा। तो ये लॉजिस्टिक्स के ऊपर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो वेमियो कंपनी है, एप्पल है, और दूसरा मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फेसबुक है, ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया कि ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब फेसबुक के प्रोडक्ट हैं। ये अलग अलग एआई के बेटरमेंट है। लीगल में IBM वॉटसन है, उसके ऊपर बहुत सारे लीगल, कभी लॉयर का भी बहुत कम जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप जो लीगल आप प्रॉब्लम डालेंगे तो लीगल एडवाइस पूरा केस लो ढूंढ के वो बता देते हैं। तो ये कंपनीज IBM है, फेसबुक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये इसको लीडरशिप प्रोवाइड करेंगी एआई को। दूसरे लोग भी करेंगे, लेकिन जो दूसरे लोग कंपनी बनाएंगे ना,
तो ये लोग उसको बिलियंस ऑफ डॉलर लेके खरीद लेंगे। इनके पास पैसा है, 2000 ट्रिलियन, 2000 बिलियन, 2 ट्रिलियन का वैल्यू है। और लास्ट में मैंने बताया VR एंड AR, वो भी फेसबुक उसको लीडरशिप प्रोवाइड कर रही है ऑलरेडी। Oculus करके कंपनी है, OCCULUS, जो आज, और माइक्रोसॉफ्ट भी, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी होलोलेंस, मैंने बोला ना होलोग्राफिक, पूरा वो बना दिया है, $3500 में मिलता है अमेरिका में। आप देखिए, मैं आपको एक बिजनेस का एक और आइडिया दे सकता हूँ, मतलब इतनी सारी, पूरा वर्ल्ड ओपन है, आप क्या कर सकते हैं, पूरा राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, ऐसी बात है। कितना बड़ा फील्ड ओपन हो रहा है कि आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट होल, ये जो नए प्रोडक्ट है ना आएंगे, उसको यूज कैसे करेंगे और उसको यूज करके लोगों को कैसे फायदा होगा। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब क्या, कि आपको वो ऑगमेंटेड ग्लास पहनेंगे ना, तो समझ लीजिए एप्पल को देखेंगे ना, एप्पल को देखा ना तो हवा में दिखेगा कि ये एप्पल है, इसके अंदर इतना विटामिन बी है, इतना विटामिन सी है, इतना विटामिन डी है, वो ऑटोमेटिक। अब ब्रिज पे जाएंगे, वो चश्मा लगाएंगे तो दिखेगा ये ब्रिज कितने साल पुराना है, ऑटोमेटिक हवा में दिखेगा। तो इससे क्या होता है, डिजाइनिंग में जो लोग प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, बजाज ऑटो है, मारुति है, वो इंजीनियर उसके सामने देखेगा ना, अपना मोटर बाइक के सामने, वो खुद इमेजिन कर सकता है और उसको दिखेगा कि इसका अगर मैंने फ्यूल टैंक बढ़ा दिया तो गाड़ी कैसे दिखेगा। आर्किटेक्ट लोग हैं, वो क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं कि आपका ये घर ऐसे दिखेगा, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी का चश्मा डालेंगे तो दिखा सकते, देखो अभी ऐसा दिख रहा है, बाद में ऐसा दिखेगा, दिखा सकते हैं एक्चुअल में। ये सब एप्लीकेशन जो बना पाएंगे, मैंने कहा बेटरमेंट अमेरिका में, इंडिया में बना सकता है कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब लोगों ने प्लेटफॉर्म ओपन कर दिए। गूगल का मशीन लर्निंग का प्लेटफॉर्म ओपन है, बनाओ आप प्रोग्राम। फेसबुक का ओपन है, ये जानते हैं लोगों को जनरेट करने दो, बिल्ड करने दो, ये प्लेटफॉर्म पकड़ के रखो, लेकिन उस पे ऊपर बिल्ड करने दो लोगों को। तो ये कंपनीज हैं जो बहुत पॉपुलर होंगी। अभी आप सोचिए, एप्पल का प्राइस मार्च में $210 था, आज कल $460 हो गया, $460 हो गया। मैंने लिए थे एप्पल के स्टॉक। देखो, आप जरा फ्यूचर देखेंगे तो आपको फायदा होगा। तो अभी जो $2 ट्रिलियन में भी कंपनी में ले रहे हैं पैसा, उनको भी कुछ फ्यूचर दिख रहा है ना, तो भाई ये और आगे बढ़ेगी कंपनी। ये कंपनीज हो गए। और अभी ट्रेंड, लास्ट में बात करूंगा ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड क्या होंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा अभी वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, चश्मा। अभी देखिए, दुनिया में मेरे चाची है, उसने बोला मैं कभी स्मार्टफोन नहीं यूज करूंगी। मुंबई में मेरी माता जी भी ऐसा कहती कि मेरे को स्मार्टफोन नहीं चाहिए। वो सब यूज करने लगे, सब सीनियर सिटीजन यूज करने लगे, सब सीख रहे धीरे धीरे। वैसे सब चश्मा लगाएंगे। फिर अभी बोलेंगे ना, जियो ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया इंडिया में ये वर्चुअल रियलिटी के लिए। अभी बोलेंगे यूज करो, बोले नहीं मेरे को चश्मा नहीं जमेगा। बाद में सब ट्रेंड बोल रहा हूं मैं आपको, 10 साल में सब वर्चुअल रियलिटी यूज करेंगे, होलोलेंस यूज करेंगे, ट्रेंड हो जाएगा। एजुकेशन और लर्निंग जो है, ये सब डिग्री सब खत्म हो जाएगी। 8-8, 10-10 साल पढ़ो, 10 साल पढ़ो, बाद में दुनिया खत्म हो गई, डिग्री का वैल्यू चला जाएगा। सब लोग माइक्रो लर्निंग आ जाएगी, सीखेंगे जल्दी से, स्किल सीखो। अभी मैंने बताया कि ये एआई बड़ा सेंट्रल फिगर हो जाएगा। अभी एआई आता नहीं है, 10 साल के बाद सीखेंगे तो तब तो दुनिया बदल गई। अभी सीखो, आज सीखो, पाइथन सीखो, कैसेंड्रा सीखो, तो ये माइक्रो लर्निंग की दुनिया आ जाएगी। उसको यूज करो, स्किल डेवलप करो और उसमें उपयोग करके कुछ बनाओ।
तो डिग्री का वैल्यू चला जाएगा। आज भी आप देखेंगे ना, फेसबुक क्या बोलता है, वो बोलता है ये प्रोग्रामिंग लिख के दिखाओ, चैलेंज देते, प्रोग्रामिंग चैलेंज। अमेजॉन प्रोग्रामिंग चैलेंज देती, तुम्हारे में टैलेंट है ना, लिख के दिखाओ। लिख के दिखाया तो तुमको $2 लाख का पगार देंगे। टैलेंट दिखाओ, करके दिखाओ, आपको नौकरी मिलेगा। तो ये ट्रेंड हो जाएंगे, घर से बैठ के काम करेंगे, रिमोट लर्निंग, रिमोट वर्किंग, सब रिमोट। आदमी बाहर तभी निकलेगा जब उनकी मूड आएगा मौज करने के लिए, बस कोई कंपल्शन नहीं कि नौकरी के लिए, धंधे के लिए बाहर जाओ, पढ़ने के लिए बाहर जाओ, मन हो गया तो जाएंगे। तो ये ट्रेंड आ जाएगा। काफी सारी चीज, जूम मीटिंग इक्विवेलेंट टू, आज लोग बोलते हैं आज मेरा मीटिंग है, अभी मैंने बोला घर में मेरा मीटिंग है, तो सब समझ जाते हैं मीटिंग मतलब जूम मीटिंग है। तो ये ट्रेंड आ जाएंगे। और तो ये मैं मोटा मोटा मैंने जो कहा, ये 5 चीजें कही, और मैं चाहता था उसमें बात करूं कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, 2 मिनट में कह देता हूं। तो इसका बहुत सोसाइटी पे इम्पैक्ट होगा, 3 चीजों पे इम्पैक्ट होगा। इंडिविजुअल, आपके पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट होगा, आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, आपके फैमिली पे इम्पैक्ट होगा, आपके करियर पे इम्पैक्ट होगा, पूरे सोसाइटी पे इम्पैक्ट होगा, और बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा। आप अभ्यास करिए कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अभी आपको क्या करना है, आप गोल बना दीजिए। ये मीटिंग खत्म हो गया, आप एक गोल बनाइए कि मेरे को ये सीखना है, या ये करना है, या ये टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, ये सोल्यूशन अच्छा लगा, कुछ नहीं तो ये कंपनी अच्छी लगी, इसमें पैसा लगाओ। तो ये आप कुछ गोल बनाइए, और लास्ट में स्किल डेवलप करिए। वो गोल को अकम्प्लिश करने के लिए स्किल डेवलप करिए। तो ये मैंने 8 बातें कही: ड्राइविंग फोर्स, टेक्नोलॉजी, सॉल्यूशन, कंपनी और ट्रेंड, डीटैक्ट। तो बहुत, और आप सोचिए जरा 50 साल के बाद क्या होगा, 5G, 6G, 7G। ये तो मैं 5G 2022 की बात कर रहा हूं। तो ये काफी मैसिव लेवल पे टेक्नोलॉजी चेंजेस आएंगी, और इम्पैक्ट, गोल्स एंड स्किल्स। तो आप उसका यूज कर सकते हैं। आप कंट्रोल में हैं, ताकत आप में है, आपको मालूम पड़ गया ये फ्यूचर है, और अभ्यास करिए, और उसको कैसे यूज करने का वो सोचिए। और भरत भाई ने मेरे को, देखिए मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब टॉपिक पे बात करने को, लेकिन कभी टाइम नहीं मिलता है। भरत भाई ने मेरे को काफ़ी एनकरेज किया, काफ़ी फॉलोअप भी किया। एक बार मैंने प्रोग्राम शेड्यूल किया, फिर कैंसिल किया, और अभी मुझे ऐसा लगा कि ये रियली बहुत पावरफुल चीज़ है, लोगों को मालूम पड़ेंगी तो फ़ायदा हो सकता है। तो अभी मैं गुरुवार को भरत भाई, मैं सोच रहा हूँ एवरी थर्सडे एवरी थर्सडे नहीं, मैं डिसाइड किया है जब मैं ऐसे टेक्नोलॉजी ट्रेंड एक पकड़ा, अभी तो छोटा सा बात किया है, लेकिन हर एक ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे तो लोगों को लाभ मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए प्रोग्राम में, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बातें करते हुए। भरत भाई थैंक यू वेरी मच, एंड पराग भाई थैंक यू वेरी मच।